we have to find the velocity v1 and v2 of these points 1 and 2 for this rod. So if we see the solution, what I said, if the structure is not fixed about any point, then this is going to perform the complex motion like रोटेशनल कम ट्रांसलेशनल मोशन। इस केस में हमने क्या कहा है कि आप ट्रांसलेशनल मोशन को अलग से एनालाइज करो, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसको अलग से एनालाइज करें तो हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, v, और ये रिजिड बॉडी है, बताने की आवश्यकता है नहीं, रॉड एक रिजिड बॉडी होती है, तो इसके हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वो v ही होगी। तो हमें 1 और 2 पॉइंट को एनालाइज करना है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, v एंड v, सेम वेलोसिटी। नाउ वी विल एनालाइज द रोटेशन about center of mass, rotation about center of mass. So in this case, as the rod rotates in this direction with omega, you can say that the velocity of this point will be in this direction. What is the value of velocity? तो velocity हमें पता है क्या होता है, v equals to omega r। r क्या होता है, तो जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है वहां से लेकर के इस पॉइंट 1 तक के डिस्टेंस, तो इस फर्स्ट पॉइंट की एक और वेलोसिटी क्या आ गई, ओमेगा टाइम्स l/2, और वो आएगा लेफ्ट डायरेक्शन में क्योंकि ये रॉड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। लेकिन इस सेकंड पॉइंट को अगर आप देखते हो तो एक वेलोसिटी यहां पर आ जाती है ओमेगा l/2 इस डायरेक्शन। तो आप देखो कि फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी, मैं अगर आंसर लिखूं यहां पर, आई राइट द आंसर, तो फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे, इट विल बी रिटन एज v minus omega l/2 and you can put I cap, क्योंकि ये x के अलॉन्ग हमें दिख रहा है, v2 will be v plus omega l/2 and this is along what, I cap again. So this is the answer. Now if I show you the another problem, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दूसरे प्रॉब्लम जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा आप इसको खुद से सॉल्व कर पाओगे। देखो जैसे कि अब इस बार रॉड इस तरीके से रखा है हमने, यहाँ पर क्वेश्चन देखना, रॉड को हॉरिजॉन्टल रखा है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में है कितनी, v, और इस रॉड को हम घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। Then we are asked to calculate the velocity of this first point and this second point. Again we have to find the velocity of first point and the velocity of second point. So you can solve this question. I will give you 30 seconds only. In this question, if we see the solution, what we have to do here? First, we will analyze the translational motion, and then we will analyze the rotational motion, and then for combined rotational and translational motion, we will be writing the required equations. Now, as the center of mass has velocity in x direction, so the complete, this is a rigid body, so each and every point will have velocity in the same direction because this is a rigid body.
Okay, very good, Pankaj. Correct answer. So this is point one. This is point two. Now, if we see the rotational motion, the rod is rotating in this direction with omega. Again, the length of the rod is given L. So what we take the velocity because of rotation here, it will be in this direction. And for point 2, the velocity due to rotation will be in this direction. What is the value here? Value will be omega L by 2, and here this value will become omega L by 2. So now the combined answer can be written as velocity of first point equals to v I cap minus omega L by 2 j cap. Why did I take this negative? Because this omega L by 2 is along negative y direction. Now the velocity of second point v2. V2 will be written as again v I cap. The x direction velocity will be same. And for second point, if you see the velocity due to rotation, it is along the positive y axis. So you can write this in this form. So this is the answer. Hope you have understood the situation and this question. Whenever it comes about the rotational cum translation, okay. So in that case, we have to analyze the motion, translation, and the rotation separately. And while writing the answers, we can combine those equations. Pankaj, your answer is swapped. Okay, you have answered the opposite values of V1 and V2. Please correct this. Okay, next. If anyone has doubt, please ask me. If no doubt is there, then we can move to the next page. Here I will show you the acceleration analysis. As we have done the analysis of velocity in case of what? Combined rotational and translational motion. Similarly, we can analyze the acceleration for combined rotational and translational motion. You can say this motion is CRTM. Again, I have taken a rigid body whose center of mass has acceleration given. बड़े ध्यान से समझना, अब इसके एप्लीकेशन देखोगे तो पता चलेगा कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. बस आप पहले एक बार इसके काइनेमेटिक्स को लिखने सीख जाओ. मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स कंसीडर किए एनालाइज करने के लिए. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3. एंड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास. देखो हमने नोट लिखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर फिक्स नहीं है तो उसका जो रोटेशन होता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में होता है? तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में. तो ये सेंटर ऑफ मास इसका अगर रोटेट हो रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और किसी ऐसे टाइम की बात कर रहे हैं जब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है. ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t. किसी आर्बिट्ररी टाइम की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर. एट टाइम t एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो हम क्या करेंगे, जब भी रोटेशन कम ट्रांसलेशन होता है तो हम प्योर ट्रांसलेशन पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम प्योर रोटेशन को एनालाइज करते हैं, जैसा कि वेलोसिटी के लिए किया था. तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट. जब हम प्योर रोटेशन की बात करते हैं, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है रिजिड बॉडी के केस में, वही हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा इफ द बॉडी इज रिजिड. और डेफिनेटली रिजिड बॉडी ही होगा जब भी कंबाइंड रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन की बात होगी. नाउ इफ वी सी द प्योर रोटेशन, इन दैट केस
हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा होता है किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, जैसा कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर वन, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इस फर्स्ट पॉइंट का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसी पॉइंट का एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, हमें पता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम क्या लिखते हैं, अल्फा आर। तो हर एक पॉइंट का या हर पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, एक टुवर्ड्स द सेंटर, एक टेंजेंशियल टू द सर्कल, जिस सर्कल में ये रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो मैंने 3 अलग अलग सिचुएशंस के लिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को यहाँ पर लिखा है। तो किसी भी पॉइंट की आप बात करो, किसी भी पॉइंट की आप बात करो, आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जरा गौर करेंगे अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स को। तो फर्स्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन की बात करो, a1 क्या आ गया, तो वेक्टर a, वेक्टर अल्फा r1 ओमेगा स्क्वायर r1। मैंने इसको आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं है किस डायरेक्शन में होगा। तो इन जनरल मैंने बात करी है कि जो भी ये a एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी या ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू होगी या अल्फा r की वैल्यू होगी, उन सबको मैंने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ऐड किया है। इस चीज का खास ख्याल रखना है, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, ओमेगा स्क्वायर r की बात हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात हो अल्फा r, इन सब को मैंने अलग अलग वेक्टर फॉर्म में लिख करके ऐड किया है, जहां से कि हमें वेक्टर a1, वेक्टर a2 और वेक्टर a3 की वैल्यू पता चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इन तीनों एक्सेलरेशन को सेपरेटली वेक्टर फॉर्म में ऐड किया है। तो ये एक्सेलरेशन की एनालिसिस है, जैसा हमने कल वेलोसिटी की एनालिसिस करी थी वैसा ही ये एक्सेलरेशन का एनालिसिस है। सो सी द नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखना चाहो, इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो यू विल फाइंड कि क्वेश्चन क्या दिया है, एक डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस r, पॉइंट्स हमने लिए हैं, अब देख लो ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 and the point number 5. We have taken these points and its center of mass has acceleration a. क्वेश्चन को समझिएगा, और ये रोटेट कर रहा है किस वैल्यू से, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। और एक जो 5 नंबर पॉइंट लिया है वो मैंने लिया है हाफ ऑफ द रेडियस वाली वैल्यू पे, r/2 पर मैंने 5 पॉइंट को कंसीडर किया। अब आपको क्या करना है कि इन सारे पॉइंट का, चाहे ये पॉइंट नंबर 1 हो, ये पॉइंट नंबर 1 हो, पॉइंट नंबर 2 हो, पॉइंट नंबर 3 हो, ये पॉइंट नंबर 4 हो, इन सब के एक्सेलरेशंस को मुझे इंडिविजुअली लिखना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। एक और पॉइंट लिया है 5th पॉइंट, जो कि r/2 डिस्टेंस है। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इसका एक टेंजेंट, एक तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का उन्होंने दे रखा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है। तो यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इस फर्स्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन को अगर देखो तो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन फर्स्ट पॉइंट का क्या है, a i क्या, you see translational acceleration is first point का, तो you will find ये a i का, this value is a i। लेकिन इसके जो रोटेशनल एक्सेलरेशन है, रोटेशनल मोशन के जो एक्सेलरेशन है, रोटेशन में भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा है अभी तक सर्कुलर मोशन में,
we have written alpha times r. And what is the centripetal acceleration we have written? ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. आप देख लो ये जो सर्कुलर मोशन है इसका मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए. इस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को अगर हम एनालाइज कर लें तो वो भी काफी रहेगा अपने लिए. देखिए जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल में जो पॉइंट्स हैं अपने पास, ये जैसे ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ. ये जब ओमेगा से घूम रहा है किसी इंस्टेंट पर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है इस पूरे डिस्क की, तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसका सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर आर. और ये हमेशा सेंटर की तरफ होता है. चाहे आप फोर्थ पॉइंट के लिए लिखो तो क्या लिखोगे आप? ओमेगा स्क्वायर आर. और ये किस डायरेक्शन में होगा? आई कैप की डायरेक्शन. आप देखना है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट का जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन लिखा है यहाँ पर हमने, वो क्या है? माइनस ऑफ जे कैप, क्योंकि ये डाउनवर्ड है. और फोर्थ पॉइंट के जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन लिखे हमने, वो क्या लिखा है? ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप. तो ये समझने की बात है. तो एक तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है जो आप यहाँ से समझ रहे हो, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसे कोई भी सर्कल है अपने पास, इस सर्कल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट का क्या होगा? तो अल्फा टाइम्स आर. दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में, अल्फा टाइम्स आर. इस पॉइंट का ऊपर की तरफ अल्फा टाइम्स आर, सेकंड पॉइंट का नीचे की तरफ अल्फा टाइम्स आर. आप इन सारे पॉइंट के लिए हमने जो यहाँ पर लिस्ट किया है कॉलम में, उससे मैच करके देख सकते. जैसे सेकंड पॉइंट का, एक तो ट्रांसलेशन की वजह से जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो तो होगा ही होगा इस पॉइंट पर, सी ए तो आएगा ही आएगा, ए आई कैप. उसके बाद रोटेशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसमें नीचे की तरफ आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और एक सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ पर, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन आ जाएगा किधर को? सेंटर की तरफ, ए सी. तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये जो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, और इसके साथ साथ एक ट्रांसलेशन वाला भी एक्सेलरेशन, इन सबको एक साथ लिखना पड़ेगा. तब जो इसके पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट के एक्सेलरेशन कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का केस है. ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. एक बार मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो आप लोग प्लीज इसको छेड़ेंगे नहीं, अदरवाइज आपके नाम इधर उधर हो जाएंगे. चलिए आ गया आपकी अटेंडेंस. आप यहाँ तक समझ सकते हो. मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसीलिए लिया था, इमेजेस पहले से लिए हैं मैंने, क्योंकि इनको समझाने के लिए अगर मैं डायग्राम बनाता तो फिर 40 मिनट में सिर्फ डायग्राम हो पाता. अब आप इसको नोट करना बहुत अच्छे से. ओके, एवरीवन, राजीव एंड एकता, ललित, एवरीवन. ओके, अर्चना, आयुष, अनमोल, अनु, भूपेंद्र, देवेश, जो भी आप लोग सारे प्रीति लेक्चर में बने हुए, निशा, मुस्कान, महक, इनको नोट करेंगे आप अपने प्रॉपर नोट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके बाद स्टार्ट होता है अपना बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है. ये सब तो क्या है? ये तो कॉन्सेप्ट है, जो अभी हम पढ़ रहे थे वो कॉन्सेप्ट है, उनको यूज करना है. और एप्लीकेशन आसान ही है, ज्यादा टफ नहीं. बस थोड़ा आराम से पढ़ने की जरूरत है इनको. जल्दबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी. रोलिंग मोशन, नेक्स्ट इज द रोलिंग मोशन. यहाँ पर देखिए, इस रोलिंग मोशन की अगर बात करें तो इसका डेफिनेशन पहले मैं लिखता हूं. एक
during the motion of a rigid body, if during the motion of uh, a rigid body there is no relative slipping, there is no relative slipping between the points, relative slipping between the points of contact, points of contact, then motion is called, then motion is called rolling. Then motion is called rolling. इसके डेफिनेशन को समझिए. If during the motion of a rigid body there is no relative slipping between the points of contact, then motion is called rolling. तो इसमें देखिए डायग्राम बनाता हूं मैं एक थोड़ा सा. ये एक डायग्राम ले रहे हैं हम यहाँ पर. इस डायग्राम को हम शो करेंगे फॉर द रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए. जैसे कि साइकिल के पहिए की बात करूं मैं, आप ब्रेक अप्लाई नहीं करो और नॉर्मली आप पैडलिंग करो तो यू विल सी कि जो साइकिल के पहिए हैं वो प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहे हो. वैसे केसेस की बात करेंगे तो आपको एप्लीकेशन भी दिखाया सा ही मिलेगा. जब क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं तो साइकिल के बारे में बात होती है, कार के व्हील्स के बारे में बात होती है, तो एप्लीकेशन भी आपको सेम टू सेम दिखाया सा ही मिलेगा. जैसे ये एक डिस्क है, मान लो कोई भी डिस्क है जिसका कि मास मैं m और रेडियस r कंसीडर कर लेता हूं और ये डिस्क ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा से रोटेट कर रही है और साथ ही साथ इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दी गई है v. तो आपको ये याद रखना है. कंडीशन देखिए क्या होता है. कंडीशन फॉर रोलिंग, रोलिंग के कंडीशन क्या होते हैं इसको समझिए. अगर हम प्योर रोलिंग की बात करें तो यहां से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं. ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात होती है. कंडीशन यही होगा प्योर रोलिंग मोशन का कि जो ये फर्स्ट पॉइंट की, जैसे इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट पॉइंट, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वो वाला पॉइंट है जो इस डिस्क के अंदर है, और एक दूसरा पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूं जस्ट इसके ऑपोजिट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दूसरे सरफेस की तरफ. दूसरा सरफेस ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड. तो यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है कि ये प्योर रोलिंग मोशन तभी करेंगे जब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेकंड. ये कहां पर बात हो रही है? ये बात हो रही है एट द पॉइंट ऑफ, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ऑब्जेक्ट का या सरफेस का, उन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो वेलोसिटी पहले बॉडी का है और जो दूसरे बॉडी की वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए. तो अब यहाँ पर कंडीशन कैसे अप्लाई करें? यहाँ पर आप देखो कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूं
ये फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी, अब देखो कि इसकी दो वेलोसिटी है। एक तो इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, जो कि सेंटर ऑफ मास की जितनी वेलोसिटी उतनी होती है। दूसरी रोटेशन की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो ओमेगा क्रॉस आर। ओके, तो जैसा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी ओमेगा टाइम्स आर। तो फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी है v, और सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट इज v माइनस ओमेगा आर। ये आ गया रिलेशन नंबर। अपने को तो करना क्या है, ये पहले पॉइंट की वेलोसिटी को दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी के इक्वल करना है। अगर ऐसा होता है तभी हम मोशन को क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। रोलिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सरफेस, जैसे मैं ब्रेक अप्लाई कर दूं साइकिल चलाते हुए, तो उसमें क्या होगा कि ये सरफेस स्किड कर जाते हैं, यहाँ पर स्लिपिंग होने लग जाती है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। लेकिन अगर मैं ब्रेक अप्लाई ना करूं, नॉर्मल पैडलिंग करूं, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या करेगा, सिर्फ ये रोल करता जाएगा। और हमें कंडीशन क्या मैथमेटिकली यूज करनी है कि इन दोनों पॉइंट, दोनों ऑब्जेक्ट के सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, तो सेकंड पॉइंट तो ग्राउंड है। अब देखो सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिया है, ग्राउंड लिया है। ग्राउंड तो रेस्ट पर है, सेकंड पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे, जीरो। तो यहां से अपने को क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के दो पॉइंट्स हमने चूज किए दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सरफेसेस के लिए, उन वेलोसिटी को हम इक्वल करेंगे। हेंस मेकिंग v1 equals to v2, we are getting what, the velocity of first point which is v minus omega, and velocity of second point which is inside the ground, and ground is at rest, so it is v equals to omega r। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये क्या आ गया हमारे इस केस के लिए, कंडीशन फॉर रोलिंग मोशन। अपने को तो सीधा यही याद रखना, जैसा देखो कांस्टेंट मोशन मैंने बताया था ना, कांस्टेंट मोशन में हमने वेज कांस्टेंट किया था। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो नॉर्मल के डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट हो, ये सेम होते हैं। लेकिन जब प्योर रोलिंग की बात होगी, प्योर रोलिंग का मतलब होता है नो स्किडिंग, मतलब नो स्लिपिंग, है ना। रोलिंग मोशन की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब क्या क्या लिख सकते हो आप टेक्निकली, कि स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, नो स्लिपिंग, नो स्किडिंग। ना ये स्किड होना चाहिए और ना ही स्लिप। तो ये कंडीशन है प्योर रोलिंग का। आपको कंडीशन मैथमेटिकली खुद से लिखना है। पॉइंट जो याद रखने वाला पॉइंट है वो क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनकी वेलोसिटी दोनों सरफेसेस की सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको मैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मान लो ऐसा हो कि ये वाली वेलोसिटी v अगर ग्रेटर देन ओमेगा आर हो गई, तब तो प्योर रोलिंग नहीं होगा। तब कैसा मोशन होगा आप सोच के देखो इस डायग्राम में। अगर ये फॉरवर्ड वेलोसिटी बैकवर्ड वेलोसिटी से इस पॉइंट का ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या हम कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पर जो स्लिपिंग होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में ये स्ट्रक्चर स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ द फॉरवर्ड स्लिपिंग। ये कंडीशन किसका है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का, कि आगे की तरफ स्लिप कर जाएगा ये स्ट्रक्चर। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखो, अगर ऐसा हो कि जो ये इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो कम हो जाए, velocity due to rotation, then what we can do here, we can say that the slipping will be in reverse direction।
रिवर्स स्लिपिंग इज देयर। और रिवर्स स्लिपिंग से बेहतर एक वर्ड आप हम यहाँ यूज कर सकते हैं, दैट इज बैकवर्ड। पीछे की तरफ ये स्लिप कर जाएगा, बैकवर्ड स्लिपिंग। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से रोलिंग मोशन के कंडीशंस को यूटिलाइज किया है। अब आपको मैं आज के लेक्चर के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं कि आज के बाद से, अभी से जो भी लेक्चर मैं यहाँ पर आपके कैरी करूंगा, उन सारे की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर सेम डे मिल जाएगी। तो आपको अगर लगे कि किसी पॉइंट पे आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता है, यू कैन reach to the link. I will provide you the link in the group once it gets uploaded in the YouTube, and you can re-watch the lecture if required. And please make sure, don't forget to like the video. Actually, when you like, जबरदस्ती का लाइक नहीं करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है डिस्क की तरफ। इस ऑब्जेक्ट के लिए इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v1। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अपने को दे रखा है v1। ओके, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ये ओमेगा से ऐसा रोटेट कर रहा है। ये है पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। और ये है कि जो बॉटम वाला प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म के पास भी खुद की वेलोसिटी है v2 लेवल, और इस डिस्क के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 1। मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, फाइंड रिलेशन बिटवीन all variables, relation between all variables for pure rolling, और all variables for pure rolling। वेरिएबल क्या क्या है, v1 v2 एंड ओमेगा। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप इसको समझ लो तो बड़ी बात है। हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको एक बार यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ फिर से। ये ड्रॉ कर दिया मैंने इसको, और देखते हैं कि जो पूछा गया है उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। We will see the solution for this question. They have asked us to find the relation between all the variables, means वेरिएबल v1 v2 ओमेगा 1। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये प्योर रोलिंग मोशन है, जैसा कि यहाँ पर कंडीशन दिया गया, if this is the condition of pure rolling, then the velocity of this point of contact in first object and the point of contact in second object must be equal. So हम इन दोनों पॉइंट को अलग अलग एनालाइज करते हैं। अगर आप फर्स्ट पॉइंट को देखते हो, इसके ट्रांसलेशन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1, और रोटेशन की वजह से वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाती है ओमेगा 1 टाइम्स r, ओमेगा 1 टाइम्स r। ये वेलोसिटी है इसकी रोटेशन की वजह से। और फिर आप सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, तो सेकेंड पॉइंट इज इनसाइड द प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी है v2। हमें तो क्या करना है, इन दोनों वेलोसिटी को इक्वल करना। जैसे कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या इस पॉइंट की हम लिख सकते हैं v1 माइनस ओमेगा 1 टाइम्स r, और सेकेंड पॉइंट की वेलोसिटी है v2। तो फॉर प्योर रोलिंग
what will be the answer here? Relation between the variable, the velocity of first point, which is v1 minus omega 1 r, is going to be equal with velocity of second point. तो ऐसा करके आप देख सकते हो कि हम कंडीशंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ये याद होना चाहिए कि प्योर रोलिंग मोशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं उनकी वेलोसिटी को इक्वल करना होता है। ये एक स्पेशल कैटेगरी का मोशन है जिसमें कि जो भी रोलिंग ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है। सो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप प्लीज इसके